Hello everyone and welcome back to the lecture number 13 on operating system. Up till now we discussed about the basic concept of operating system as well as we learn about process management, in which we learn how process is going to be managed by the operating system. From today onwards we are going to learn about memory management strategy, which include memory like register, buffer, cache, your main memory, your physical memory, your logical memory, your secondary memory, and all these things. So let's start our first topic. Let's begin with the base and limit register. We must ensure correct operation to protect the operating system from access by user processes, and in addition to protect user processes from one another. This protection must provided by the hardware. It can implemented in a several way and we can see all these throughout this chapter. In this section, we outline one possible implementation. Now consider this is your main memory. Here we have different address space for different processes. We need to ensure that each process is having its own address space. Now here you will see operating system is stored and reserved for particular memory. ये यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर की memory space which represent a free memory space, and these are the few user processes. Each user process is having its own memory space. अब इस मेमोरी स्पेस को प्रोटेक्शन किस तरह से दे या फिर वन यूजर प्रोसेस दूसरे यूजर प्रोसेस को हैम्पर ना करे, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है बेस एंड लिमिट रजिस्टर. So what is base register? Base register hold the starting address of your process and limit register hold the range of your process. So here we have a base register whose value is stored 300040, which is nothing but the starting address of this particular process P2, and limit register contain the value 120900, which represent the actual range of your process. तो 300040 से लेकर आगे आने वाले 120900 इतनी मेमोरी जो स्पेस है वो प्रोसेस 2 से बिलोंग करेगी. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 100040 से 120900 को अगर हम लोग ऐड करें तो आपको लास्ट एड्रेस मिलेगा 420940. In that way we are able to restrict or limit your process or bifurcate your process in a memory. Now let's talk about hardware protection with base and limit register. Now consider कीजिए कि CPU है वो एक P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है. So this is your memory which hold different processes which contain P2 process, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस है 100 एंड लिमिट रजिस्टर की वैल्यू है 25. तो लास्ट एड्रेस मिला आपको 125. तो आपका जो प्रोसेस है विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज में प्रेजेंट है. तो आपका जो CPU है ये CPU P2 को एक्सेस कर रहा है और डेफिनेटली कुछ डेटा P2 प्रोसेस से उसे एक्सेस करना है, यानी कि उसको रीड करना है. तो CPU क्या करेगा? एक एड्रेस जनरेट करेगा. सपोज कीजिए कि एक एड्रेस जनरेट हुआ है 112. तो ये 112 एड्रेस सबसे पहले बेस रजिस्टर से कंपेयर किया जाएगा. अगर ये एड्रेस बेस रजिस्टर से ज़्यादा है तो हम ये अलाउ करेंगे फॉर द नेक्स्ट कंडीशन. अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली हम इसे ट्रैप करेंगे. तो 112 इज ग्रेटर देन 100 तो यस, तो हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे. नेक्स्ट कंडीशन में आपका बेस रजिस्टर ऐड होता है विद योर लिमिट. तो एक एड्रेस जनरेट हुआ है 125. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस 112 विथ 125. अगर ये 112 125 से लेस देन होगा तो हम कह सकते हैं कि करेक्टली हम लोग इस प्रोसेस P2 को एक्सेस कर रहे हैं. अगर ये ऐसा नहीं है तो हम प्रोसेस P2 की जगह पे दूसरे किसी P1 या P3 प्रोसेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका मतलब है एक यूजर प्रोसेस दूसरे यूजर प्रोसेस को हैम्पर कर रही है. लेट अस कंसीडर कीजिए कि P2 प्रोसेस का डेटा हमें एक्सेस करना है और CPU ने एड्रेस जनरेट कर लिया 80. तो डेफिनेटली 80 इज नॉट ग्रेटर देन योर बेस रजिस्टर. इसका मतलब है कि यहाँ पे एक एरर ट्रैप होगा जिससे हमें पता चलेगा कि P2 प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस का डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है.
लेट अस कंसीडर कि आपके प्रोसेस ने अभी एड्रेस जनरेट किया है 151, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर हो जाएगी कि दैट 151 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 100, तो ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप फिर ट्रैप कर सकते हो कि दैट 151 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 125, तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी लेस देन, यहाँ पे वैल्यू मिली ग्रेटर देन। इसका मतलब ये है कि आपका जो P2 प्रोसेस है ये किसी दूसरे प्रोसेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इन दैट वे आप यहाँ पे ट्रैप कर सकते हो कि कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है या फिर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं एड्रेस बाइंडिंग की। एड्रेस बाइंडिंग की ज़रूरत क्यों होती है और क्या होता है एड्रेस बाइंडिंग, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में एक प्रोग्राम होता है जिसे हम एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं और उस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं प्रोसेस। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करना है रिलेवेंट विद दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, तो हमें उस एड्रेस को बाइंड करना ज़रूरी होता है विद योर प्रोसेस, और तभी आप उस पर्टिकुलर डेटा को करेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम फिजिकल मेमोरी में कहीं पे भी प्रेजेंट होने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए अलाउ कर देते हैं। हमें पता है कि हमारा जो फिजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस हमेशा स्टार्ट होता है विद 0000, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारा फर्स्ट यूज़र प्रोसेस ये 000 पे ही स्टोर्ड हो, हम उसे अलाउ करेंगे टू स्टोर एनीवेयर इन अ फिजिकल मेमोरी। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ पे एड्रेसेस अफेक्ट होंगे, तो आपको उन एड्रेसेस को बाइंड करना ज़रूरी है विद योर प्रोसेस। तो देखिए आपका जो प्रोग्राम होता है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम तक अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाता है, अलग अलग फेजेस के थ्रू जाता है, और जब ये अलग अलग फेजेस और स्टेजेस के थ्रू जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एड्रेस भी रिप्रेजेंट होते हैं अलग अलग वे से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में सोर्स कोड एड्रेस है तो ये जो सोर्स कोड एड्रेस होगा ये जनरली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेगा। ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम हम इस सिंबॉलिक कोड को बाइंड करते हैं विद रीलोकेटेबल एड्रेसेस। जब ये प्रोग्राम लिंकर या फिर लोडर के पास में जाता है फिर ये रीलोकेटेबल एड्रेस को हम बाइंड करते हैं विद एब्सोल्यूट एड्रेस। ईच टाइम बाइंडिंग मैप वन एड्रेस स्पेस टू अनदर एड्रेस स्पेस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू अ मेमोरी। किस तरह से इंस्ट्रक्शन और डेटा को हम बाइंड कर सकते हैं विद मेमोरी। Address binding of instruction and data to a memory addresses can happen in 3 different stages. So ये 3 stages है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन और डेटा को मेमोरी के साथ में बाइंड कर सकते हैं। अगर हमें पता है पहले से कि हमारा प्रोसेस कहाँ पे प्रेजेंट है तो कंपाइल टाइम पे हम एब्सोल्यूट कोड जनरेट करके डेफिनेटली उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को मेमोरी के साथ में बाइंड कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस चेंज होता है या फिर लोकेशन चेंज होता है आपका प्रोसेस का, तो आप उसे रिकम्पाइल करो और रिकम्पाइल करके आप एब्सोल्यूट कोड जनरेट करो एंड डेफिनेटली आप उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को बाइंड कर सकते हो तो मेमोरी एड्रेस। लेकिन अगर आपको इनिशियल लेवल पे कंपाइल टाइम पे आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपका प्रोसेस स्टोर्ड है, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक रीलोकेटेबल कोड जनरेट करेगा और जो आपका बाइंडिंग है वो बाइंडिंग डिले हो जाएगा अप टिल लोड टाइम। अगर आपका प्रोसेस मूव होता है फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर मेमोरी सेगमेंट ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, तो डेफिनेटली बाइंडिंग ये डिले हो जाएगा अप टिल रन टाइम। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत होगी जो आपके हार्ड एड्रेसेस को मैप करेगा। तो वहाँ पे आपको जनरली बेस और लिमिट रजिस्टर को यूज़ करना पड़ेगा। इन दैट वे यू आर एबल टू बाइंड योर एड्रेसेस विद योर प्रोसेस और प्रोग्राम। In that way you are able to bind your instructions data to your memory addresses in your process or a program. So these are the multi-steps processing of user program. Here you will clearly find source program जो कंपाइलर को दिया जाता है। कंपाइलर इससे आपको एक
सिंबॉलिक कोड को कन्वर्ट करेगा। नाउ हियर you will see multi-step processing of your user program. Here you will find a source program which is represented by symbolic address. फिर ये compiler time को जाएगा, compiler time में अगर binding होता है तो absolute code generate होगा, अगर यहाँ पे delay आता है तो ये load time पे जाएगा, load time पे यहाँ पे आपको relocatable code देना पड़ेगा। अगर in case relocatable code generate करने के बावजूद भी अगर वन मेमोरी सेगमेंट से दूसरे मेमोरी सेगमेंट में आपका प्रोसेस जंप करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो आपका जो एड्रेस बाइंडिंग है ये लास्ट स्टेज में जाएगा और यहाँ पे आपको स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत होगी जहाँ पे आप बेस और लिमिट रजिस्टर का यूज कर सकते हो टू बाइंड योर एड्रेसेस। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। Address generated by the CPU is referred as a virtual address or a logical address, and address seen by the memory units is called physical address. A set of all a logical address generated by the program is called logical address space. And what is physical address space? The set of all physical address generated by the program is called physical address space. लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ये कंपाइल टाइम और लोड टाइम पे सेम होते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिटवीन द लॉजिकल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस, बट देयर इज अ डिफरेंस व्हाइल एग्जीक्यूशन योर प्रोग्राम। तो वहाँ पे आप लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को डिफर कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल एड्रेसेस एंड द फिजिकल एड्रेसेस। नेक्स्ट वी डिस्कस Memory Management Unit. It is also called MMU. It is a hardware device which map virtual address with your physical address at runtime. यहाँ पे जो बेस रजिस्टर होता है, इस बेस रजिस्टर को अभी हम लोग कहेंगे relocation register, which holds some basic value and which is going to be add with your virtual address. Virtual address ये जो logical address होता है, ये address सिस्टम जनरेट करता है। नाउ जो आपका यूजर प्रोग्राम होगा वो यूजर प्रोग्राम हमेशा आपका लॉजिकल एड्रेस जो होगा उससे डील करेगा, उसे फिजिकल एड्रेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो देखिए किस तरह से रीलोकेशन रजिस्टर यूज किया जाता है टू मैप योर वर्चुअल एड्रेस विद अ फिजिकल एड्रेस। दिस इज द डायग्राम विच शोज हाउ MMU इज वर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU एक एड्रेस जनरेट कर रहा है, दैट इज योर लॉजिकल एड्रेस जो है 346, और यहाँ पे एक रीलोकेशन रजिस्टर है जिसे हम पहले कहते थे बेस रजिस्टर। तो ये जो बेस रजिस्टर है इसके अंदर एक वैल्यू होल्ड है जो रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर प्रोसेस। तो यहाँ पे एक बेस वैल्यू है 14000। तो जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट होने वाला है वो लॉजिकल एड्रेस ऐड होगा विथ योर रीलोकेशन एड्रेस, और फिर आपको एक एड्रेस मिलेगा दैट इज योर फिजिकल एड्रेस विच इज नथिंग बट 14346, और फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन से आप आपका डेटा एक्सेस कर सकते हो फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द MMU। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं डायनामिक लोडिंग की। सो व्हाट इज डायनामिक लोडिंग? इसका मीनिंग होता है कि जो हमारा रूटीन है उसे हम एग्जीक्यूशन टाइम पे लोड करें। इसका मतलब है कि जो रूटीन है वो रूटीन हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा, और जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे तब तक वो रूटीन लोड नहीं होगा इनटू योर मेन मेमोरी। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में सपोज कीजिए एक रैम मेमोरी है। इस रैम मेमोरी की टोटल साइज है 1 GB और एक हार्ड डिस्क है जिसकी टोटल साइज है 1 TB। इसमें एक प्रोसेस है जिसकी टोटल साइज है 2 GB। नाउ इफ आई वांट टू लोड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इनटू द रैम मेमोरी विथ साइज 1 GB और प्रोसेस की साइज है 2 GB, तो 2 GB का डेटा 1 GB के मेमोरी में हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हीं रूटीन्स को कॉल करेंगे जो रूटीन का हमें यूज करना होता है। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन है वो बेटर हो जाएगी, और जो भी अनयूज्ड रूटीन है उसे हमें लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सेकेंडरी मेमोरी में रहेंगे, और प्राइमरी मेमोरी में हम उसी रूटीन्स को यूज़ करेंगे जो हमें यूज़ करना है।
यहाँ पे हमें कोई स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को टू लोड यूर रूटीन डायनामिकली। आप ये डायनामिक लोडिंग सिंपली प्रोग्रामिंग डिज़ाइन के थ्रू भी कर सकते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट लाइब्रेरीज को भी इम्प्लीमेंट करता है फॉर डायनामिक लोडिंग। तो डायनामिक लोडिंग हम तभी करेंगे जब हम किसी रूटीन को यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और वहाँ पे कितना मेमोरी अवेलेबल है ये हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल एक रूटीन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और उस रूटीन ने दूसरे सब रूटीन को कॉल किया है, तो सबसे पहले हमें चेकआउट करना पड़ेगा वेदर दैट सब रूटीन इज अवेलेबल इन योर रैम मेमोरी और नॉट। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन द रैम मेमोरी तो हमें उसे लोड करना पड़ेगा थ्रू योर सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे जो लोड करने का काम है वो काम करेगा आपका रीलोकेटेबल लोड फॉर्मेट। ये जो होता है यहाँ पे आपका एग्जैक्ट एड्रेस प्रेजेंट होगा कि डिस्क में कहाँ पे हमारा रूटीन प्रेजेंट है और कहाँ से हमें इसे लोड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायनामिक लोडिंग। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्वैपिंग। चलिए स्वैपिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक सिनेरियो कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है आपका मेन मेमोरी, जिस मेन मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस ऑलरेडी रिजर्व्ड है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिमेनिंग स्पेस इज यूटिलाइज्ड फॉर यूजर प्रोसेसेस। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है, फॉर एग्जांपल P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 लाइक दिस। ये सारी की सारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाली है या फिर जा चुकी है, इसीलिए ये सारी प्रोसेसेस हमने मेन मेमोरी में ऑलरेडी पुट अप करके रखी है। अब क्योंकि ये सारी की सारी प्रोसेसेस मेन मेमोरी में है तो ये मेन मेमोरी क्या हो गया, हमारा फुल हो गया है। अब क्या है, आपका सीपीयू जो है, सीपीयू एक प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन आपको P2 को एग्जीक्यूशन तभी मिलेगा जब ये P2 प्रोसेस मेन मेमोरी में प्रेजेंट होगा तब। तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में P2 प्रोसेस को चेकआउट करेगा whether this process is present in main memory or not। तो हम चेक करेंगे P2 प्रोसेस है क्या, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि P1 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, P7 है, P8 है, P9 है, लेकिन P2 प्रोसेस तो नहीं है। फिर सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो आपका बैकिंग स्टोर्ड है, बैकिंग स्टोर्ड किसे कहेंगे, एक फास्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी है जहाँ पे हम सारे के सारे प्रोसेस, सारे के सारे डेटा की कॉपीज हम लोग स्टोर करके रखते हैं, यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क से हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस P2 को पुट अप करना पड़ेगा इनटू द मेन मेमोरी। फिर हम क्या करेंगे, सीपीयू कमांड करेगा कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा लाओ। तो जैसे ही हम लोग P2 को पिक करेंगे और मेन मेमोरी में लाने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा, अरे यहाँ पे तो आपकी मेन मेमोरी फुल है। तो अगर आपकी मेमोरी फुल है तो क्या आप इस P2 प्रोसेस को इसमें प्लेस कर सकते हो, तो आंसर है नहीं, मेमोरी स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो इस P2 को यहाँ पे पुट कैसे करें। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें फिर शेड्यूलिंग, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जनरली चेकआउट करेगा कि मेमोरी स्पेस हमें क्रिएट करना है तो किसी ना किसी प्रोसेस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो किस प्रोसेस को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि सपोज करो कि P1 प्रोसेस है विच हैविंग लोअर प्रायोरिटी और P2, तो लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस को हम बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस को बाहर निकालते हैं और पुट अप करते हैं इनटू द सेकेंडरी मेमोरी, इनटू द हार्ड डिस्क, तो ये हो गया हमारा स्वैप आउट। तो जनरली इसे हम लोग रोल आउट भी कहते हैं। और फिर जैसे ही P2 प्रोसेस को हम वापस लेके आएंगे इनटू द मेन मेमोरी, तो इसे कहेंगे स्वैप इन, या फिर इसे हम लोग जनरली रोल इन भी कहते हैं। तो ये जो हो रहा है ये हो रहा है स्वैपिंग, यानी कि एक प्रोसेस को आप स्वैप आउट कर रहे हो इनटू द सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में,
और एक प्रोसेस को आप स्वैपिंग कर रहे हो फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में. सो दिस सिनेरियो इज जनरली रिप्रेजेंट दी स्वैपिंग. नेक्स्ट यहाँ पे इस स्वैपिंग में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, दैट इज योर रेडी क्यू. तो रेडी क्यू क्या होता है? रेडी क्यू आपने प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ा था. रेडी क्यू एक ऐसा क्यू होता है जहाँ पे प्रोसेसेस पुटअप की जाती है जो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन है. तो यहाँ पे भी सेम रेडी क्यू के अंदर हम लोग जो प्रोसेस रेडी फॉर एग्जीक्यूशन के लिए होगा वो सारे के सारे वहाँ पे मेंटेन होंगे और वहाँ से ही हम प्रोसेस को पिक करेंगे और मेन मेमोरी में पुटअप करेंगे. मतलब जो भी स्वैपिंग होगी प्रोसेसेस की फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू मेन मेमोरी, ये रेडी क्यू के थ्रू ही होने वाला है. अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोसेस हमने स्वैप आउट की है, फॉर एग्जांपल P1 प्रोसेस को हमने यहाँ से स्वैप आउट किया है, तो क्या हम इस P1 प्रोसेस को जब स्वैपिंग करेंगे वापस एग्जीक्यूशन के लिए, तो क्या ये सेम एड्रेस लोकेशन पे जाएगा, सेम फिजिकल एड्रेस पे जाएगा? ये क्वेश्चन है. अगर इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर है कि डिपेंड अपॉन द एड्रेस बाइंडिंग मेथड. तो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि एड्रेस बाइंडिंग होती है, डायनामिकली होती है, फिर स्टैटिकली होती है, आपके कंपाइल टाइम पे होती है. तो डिपेंड अपॉन द एड्रेस बाइंडिंग कि किस टाइम पे उसका एड्रेस बाइंड हुआ है, कैसे एड्रेस बाइंड हुआ है, तो डिपेंड अपॉन दैट वो उसी फिजिकल लोकेशन पे जाके स्टोर होगा कि दूसरे फिजिकल लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, वो वहां पे डिसाइड होगा. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेमोरी स्पेस या फिर जो फिजिकल एड्रेस उसे ऑलरेडी असाइन था, वहां पे कोई दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है. तो जब ये स्वैपिंग होगा तो मेमोरी स्पेस अवेलेबल ना होने की वजह से उस फिजिकल एड्रेस स्पेस पे उस प्रोसेस को हम लोग दूसरे एड्रेस स्पेस पे डाल देते, तो वो रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग में चला जाएगा. प्लस कितने आईओ ऑपरेशन पेंडिंग्स है प्रोसेस के अंदर. सो ये भी एक पैरामीटर है जो डिसाइड करेगा वेदर द स्वैप आउट प्रोसेस जब वापस स्वैपिंग होगी तो वो फिजिकल एड्रेस पे जाएगा कि नहीं जाएगा. यहाँ पे आपको मॉडिफाइड स्वैपिंग वर्जन देखने को मिलेगा लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज में, जहाँ पे स्वैपिंग प्रोसेस को जनरली डिसेबल किया हुआ जाता है और थ्रेशोल्ड अमाउंट से अगर ज़्यादा मेमोरी डिमांड होती है तभी हम स्वैपिंग को एनेबल करते हैं, और जैसे ही हमारी डिमांड रिड्यूस हो जाती है बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू तो हम इस स्वैपिंग प्रोसेस को फिर से डिसेबल कर देते हैं. सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड विथ योर स्वैपिंग. Now let's talk about the contiguous allocation. Before that, consider one scenario. Consider this is your main memory. अब ये जो मेन मेमोरी होती है, ये मेन मेमोरी बेसिकली डिवाइडेड होती है इनटू टू पार्ट्स. वन इज हाई मेमोरी एंड अनदर इज लो मेमोरी. तो एक पार्ट के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं, दूसरे पार्ट के अंदर हम यूजर प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं. तो आपका जो इंटरप्ट वेक्टर होता है, ये जो इंटरप्ट वेक्टर होता है, ये इंटरप्ट वेक्टर जनरली लो मेमोरी में स्टोर होता है. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरप्ट वेक्टर से रिलेवेंट होने की वजह से लो मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं. वाइल आपकी जो यूजर प्रोसेस है या फिर यूजर प्रोग्राम्स है, ये यूजर प्रोग्राम हाई मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं. तो जो भी हम लोग अभी इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे तो ये हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को लो मेमोरी में कंसीडर करके ही डिस्कस करने वाले हैं. अब जो आपकी यूजर प्रोसेस की जो स्पेस है उसके अंदर हम यूजर प्रोग्राम को, यूजर प्रोसेस को स्टोर कैसे करें, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास में जो मेथड है वो है कॉन्टिजियस अलोकेशन मेथड, जहाँ पे सिंगल कॉन्टिजियस सेक्शन मेमोरी का जो होगा वहाँ पे हम प्रोसेस को स्टोर करते हैं. चलिए अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम. तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका मेमोरी का मैपिंग और प्रोटेक्शन, ये जो दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को अचीव करने के लिए हमारे पास में जो चीज़ है उसे हम कहते हैं रीलोकेशन रजिस्टर.
तो रीलोकेशन रजिस्टर का अगर आप यूज़ करते हो तो मेमोरी मैपिंग एंड प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर हम लोग अचीव कर सकते हैं फॉर सिस्टम कोड एंड योर डेटा। और यहाँ पे रीलोकेशन रजिस्टर विच होल्ड सम वैल्यू, तो जनरली इसे बेस रजिस्टर कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लिमिट रजिस्टर जनरली रेंज को स्पेसिफाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो 123, तो ए 123 इज द रेंज ऑफ योर प्रोसेस, और रीलोकेशन एड्रेस मैं करता हूँ 1000, तो 1000 इज माय स्टार्टिंग एड्रेस। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जनरली एक एड्रेस जनरेट करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ एड्रेस जनरेट करता हूँ 43, तो सबसे पहले ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस यहाँ पे चेक किया जाएगा वेदर दिस एड्रेस इज विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज और नॉट। अगर ये एड्रेस इस रेंज को एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जो एड्रेस जनरेट हुआ है वो रिलेवेंट प्रोसेस के साथ में नहीं है। तो ये 43 चेकआउट किया जाएगा वेदर इज 43 इज लेस देन और इक्वल टू 123 और नॉट। तो यहाँ पे कंडीशन जाएगी 43 इज लेस देन और लेस देन 123। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम आगे बढ़ेंगे और इस 43 को हमारे बेस एड्रेस के साथ में ऐड करेंगे। सो दिस 43 is going to add with 1000. So new physical address is generated 10243। तो ये जो फिजिकल एड्रेस हमारा जनरेट हुआ है, इस फिजिकल एड्रेस पे जो भी डेटा हमारा प्रेजेंट होगा उस डेटा को, उस प्रोसेस को हम पिक करेंगे और ट्रांसफर करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। लेट अस कंसीडर कीजिए कि आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है 125। तो जैसे ही 125 कंपेयर होगा, यहाँ पे 125 इज लेस देन 123 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और यहाँ पे एरर को हम लोग ट्रैप कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्टिजियस अलोकेशन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टिजियस अलोकेशन में करना क्या होता है हम लोगों को, तो आपका ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी को हम डिवाइड करेंगे इनटू नंबर ऑफ पार्ट, ये फिक्स पार्ट हो गए, एंड इस फिक्स पार्ट के अंदर हम लोग अलग अलग प्रोसेस को स्टोर करते हुए चलेंगे। तो आपकी जो प्रोग्राम की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, आपके सिस्टम की जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, वो डिपेंड करेंगी हाउ मेनी नंबर ऑफ फिक्स पार्टीशन यू हैव इन योर मेन मेमोरी। फॉर एग्जांपल आपके मेन मेमोरी में आपने 100 फिक्स पार्टीशन किए, इसका मतलब आप 100 प्रोसेस को अलाउ कर सकते हो एट द सेम टाइम टू स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। तो आपकी जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, मतलब आप एट सेम टाइम 100 प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फिक्स साइज। जितने भी फ्री स्पेसेस होंगे, उन फ्री स्पेसेस को हम कॉल करते हैं एज अ होल। तो ये एग्जाम्पल जो नीचे दिया है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। ये है आपका मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी में एक स्पेस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व्ड है, और रिमेनिंग स्पेस जो है ये यूजर प्रोग्राम के लिए स्टोर्ड है या रिजर्व्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पार्टीशन में P5 प्रोसेस है, सेकंड में P8 प्रोसेस है, और थर्ड में P2 प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करेगा, उस प्रोसेस को हम मेन मेमोरी से बाहर निकाल लेंगे। तो जो स्पेस बचेगी वो स्पेस हो जाएगी हमारी फ्री स्पेस। तो उस फ्री पार्टीशन को हम कहते हैं होल। और डिपेंड अपॉन दैट फ्री स्पेस हम लोग न्यू प्रोसेस को अलाउ करेंगे टू एंटर इनटू द मेन मेमोरी। तो P9 प्रोसेस आ गया तो हमने उसको अलाउ कर दिया, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इसकी 20 KB स्पेस है और ये 100 MB का टोटल स्पेस है, तो 20 KB स्पेस हम 100 MB में अलाउ कर सकते हैं। तो ये पार्टीशन इधर बन गया। फिर एक न्यू प्रोसेस आया P10, वहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल स्पेस था, तो हमने उसे अलाउ किया इनटू दैट पर्टिकुलर पार्टीशन, और ये जो बचा है ये है फ्री पार्ट। तो ये हो गया हमारे लिए न्यू होल, राइट। सो इन दैट वे कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस हम एक प्रोसेस को अलोकेट करते हुए चलेंगे
टू स्टोर इनटू द मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस हमने प्रोसेस 10, प्रोसेस 9, प्रोसेस 5 और प्रोसेस 2 को असाइन किया है which having some fixed size. So this is all about the contiguous memory allocation. अभी तो हमने जाना कि contiguous allocation क्या होता है, होल्स क्या होते हैं, मेमोरी को किस तरह से हम फिक्स्ड साइज में डिवाइड करके रख सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायनामिक स्टोरेज अलोकेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे हमें सेटिस्फाइड करना है कि n साइज वाला आपके पास में प्रोसेस है और उसे फ्री होल्स हमें किस तरह से असाइन करना है। तो 3 कंडीशन है जिसके थ्रू हम उसे होल्स असाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट फिट, सेकेंड है बेस्ट फिट और थर्ड है वर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट किसे कहेंगे? तो जो फर्स्ट फ्री ब्लॉक हमें मिलता है जो बिग इनफ है टू स्टोर योर प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए आपके पास में एक प्रोसेस है P1 जिसकी टोटल साइज है 100 MB। तो आपके पास में ये मेमोरी है जो डिवाइडेड है इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। सपोज कीजिए ये सारे के सारे पार्ट्स फ्रीली अवेलेबल है या फिर एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, सर्च आउट करेंगे और सर्च करते वक्त हमें जो फर्स्ट फ्री ब्लॉक मिलेगा जो 100 MB को स्टोर कर सकता है वो हो गया हमारे लिए फर्स्ट फिट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ब्लॉक की साइज है 200 MB। तो 200 MB के अंदर हम 100 MB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये P1 प्रोसेस को हम फर्स्ट ब्लॉक के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट फिट। सेकेंड आता है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट किसे कहेंगे? अ स्मॉलेस्ट होल बिग इनफ टू स्टोर योर पर्टिकुलर प्रोसेस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पूरा का पूरा लिस्ट सर्च आउट करना पड़ेगा, यानी कि पूरी की पूरी मेमोरी हमें सर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा स्मॉलेस्ट होल है जो बिग इनफ है टू स्टोर दी 100 MB। यानी कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमें ऐसा ब्लॉक ढूंढना है जो 100 MB या 100 MB के आसपास हो जो हमें P1 को स्टोर करने में हेल्प हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास में 109 MB का कोई फ्री स्पेस है तो ये स्मॉल इनफ है और बिग इनफ है, सॉरी ये स्मॉलेस्ट साइज वाला ब्लॉक है जो बिग इनफ है टू स्टोर योर P1। तो 109 में हम 100 MB वाला प्रोसेस स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टोर कर। और थर्ड है वर्स्ट। वर्स्ट फिट के अंदर फिर से हमें सारी की सारी लिस्ट को सर्च आउट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा लार्जेस्ट होल जिसके अंदर हम हमारे प्रोसेस को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे 500 MB का अगर लार्जेस्ट होल है तो उसके अंदर हम 100 MB का प्रोसेस स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम P1 को स्टोर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डायनामिक स्टोरेज अलोकेशन प्रॉब्लम। अब ये डायनामिक स्टोरेज अलोकेशन प्रॉब्लम को जैसे ही हम लोग फेस करेंगे तो वहाँ पे जो एरर्स आते हैं उस एरर्स को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। Fragmentation is generally having a two type. One is external fragmentation and second one is internal fragmentation. तो external fragmentation होता क्या है? External fragmentation यानी कि हमारे पास में टोटल मेमोरी स्पेस अवेलेबल है फिर भी हम किसी प्रोसेस को वो मेमोरी असाइन नहीं कर सकते, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन यानी कि आप किसी प्रोसेस को एक मेमोरी असाइन कर चुके हो लेकिन वो मेमोरी उस प्रोसेस से ज़्यादा असाइन कर दी है। फॉर एग्जांपल 100 MB का प्रोसेस है और आपने 200 MB का मेमोरी असाइन कर दिया है। तो 100 MB स्टोर होगा और 100 MB वेस्ट जाएगा। तो उस 100 MB जो वेस्ट हो रहा है उसे हम कहेंगे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। चलिए इस सिनेरियो को समझते हैं बाय यूजिंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपके पास में मेन मेमोरी है। ये मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया है इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। हर एक पार्ट की साइज है 5 MB ऑफ ईच पार्ट। अब आपके पास में एक प्रोसेस है P1 जिसकी टोटल साइज है 20 MB। तो हर एक पार्टीशन जो कॉन्टिजियस है वो कॉन्टिजियस पार्टीशन की साइज है 5 MB और P1 है 20 MB। वी हैव
इनफ स्पेस टू स्टोर दिस P1। तो देखो कितना स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 5 6 30 MB हमारे पास में टोटल स्पेस है, लेकिन फिर भी हम 20 MB का प्रोसेस में स्टोर नहीं कर पा रहे क्योंकि हर पार्टीशन 5 MB का है और यहाँ पे ये P1 कॉन्टिजियस उसको असाइन नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अभी हम लोग बात करते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की। तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में फिर से कंसीडर कीजिए कि ये है हमारा मेन मेमोरी और ये भी डिवाइडेड है इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट हैविंग 30 MB ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे 30 MB हर एक पार्टीशन में मेमोरी स्पेस है। आपका P1 है, P1 की टोटल साइज है 20 MB। अब आपको 20 MB स्टोर करना है इनटू दिस फ्रैगमेंटेड इनटू दिस सेगमेंटेड मेमोरी। तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट है 30 MB का, तो आप क्या करोगे, अब आपके पास में कोई चारा नहीं है, 20 MB को 30 MB के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप P1 को स्टोर करोगे तो 20 MB इस पर्टिकुलर सेगमेंट का यूटिलाइज होगा और जो 10 MB है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो वेस्ट हो रहा है मेमोरी में, इस वेस्टेज को हम कहते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। I hope you will understand what is external fragmentation and what is internal fragmentation. External मतलब we have enough space to store the process, still we are not able to store the process because of contiguous allocation and the segments present in the memory. और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन यानी कि आपके पास में एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसके अंदर हम स्मॉल साइज ऑफ प्रोसेस स्टोर कर रहे हैं और फिर जो वेस्ट ऑफ मेमोरी हो रहा है, तो उस वेस्ट ऑफ मेमोरी को हम जनरली कहते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। तो जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है, ये एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मेथड कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन। तो इस कॉम्पैक्शन में हम लोग जनरली करेंगे क्या, जितने भी फ्री ब्लॉक्स हैं उन फ्री ब्लॉक्स को मर्ज करके एक लार्ज मेमोरी स्पेस जनरेट करेंगे। तो आप यहाँ पे जितने भी फ्री ब्लॉक्स हैं, इन फ्री ब्लॉक्स को मर्ज करेंगे बाय यूजिंग योर कॉम्पैक्शन मेथड और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा ऑफ 30 MB और फिर इस 30 MB के अंदर आप आपका P1 प्रोसेस को स्टोर कर सकते हो। तो हमने क्या किया, जितने भी 5 MB के फ्री ब्लॉक्स थे उनको मर्ज करके एक लार्ज मेमोरी हमने क्रिएट किया और उस लार्ज मेमोरी के अंदर P1 को स्टोर कर दिया। तो इन दैट वे कॉम्पैक्शन का यूज करके आप एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को ओवरकम कर सकते हो। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन से रिलेटेड अदर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन विच वी लर्न अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, देन डायनामिक एड्रेस बाइंडिंग, dynamic linking, loading, then we talk about swapping and fragmentation. For more lectures, stay tuned with this channel. Thank you.